Namaskar, good evening to all of you, and welcome to a new learning video. It has been many days since we did a learning video. Hamesha 1, 2, 3, 4, 5 and ABC, that is what we have been doing. So it's high time, थोड़ा सा value addition होना चाहिए, and people should have something to enrich what we already know or what we are trying to learn. हमारे comment box में actually there have been many comments in our YouTube channel कि people are interested, many friends are interested in learning Elliott wave. They want to know how to go about it, where to learn it, how to learn it. So this is a small presentation, maybe it will help them. कितना मददगार होता है कितना नहीं ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरी कोशिश है इस छोटे से प्रेजेंटेशन से कि आपको आपके लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाएं. तो लेट अस स्टार्ट. This is my topic, how and why to learn wave theory. Basically everything is part of wave theory, Elliott wave analysis and everything. So I'll both give you the reasons and the procedure. See, market analysis जब भी हम करते हैं, whenever you do a market analysis, there are many tools available in the market right now. बहुत सी चीज़ें हैं. Actually there is a choice of abundance, and believe me, selection is a problem when there is a thing in abundance. This is a huge problem in fact. तो अभी क्या है, वेव थियरी चल रही है. There are technical indicators, people do that, RSI, MACD, Bollinger, etc. Then there is candlestick patterns. बहुत से पैटर्न्स होते हैं कैंडल स्टिक में. बस एक चीज़ है, याद रखिएगा, कैंडल स्टिक्स आइसोलेशन में कभी नहीं देखी जाती है. अ ग्रुप ऑफ कैंडल्स, वन और मोर, मिनिमम टू, दे मेक अ पैटर्न. एक सिंगल कैंडल स्टिक से कुछ नहीं पता चलता है. देन देयर आर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स लाइक वेजेस, हेड्स एंड शोल्डर्स, फ्लैग. देन देयर इज मार्केट प्रोफाइल, गैन थियरी, हार्मोनिक पैटर्न्स लाइक क्रैब, बैट, आई डोंट नो, many other things. और भी बहुत सी चीज़ें हैं. द लिस्ट इज़, I think, more than I can put in one page. तो ये कुछ मोटी चीज़ें हैं. These are the important things that people follow, and we are going to concentrate on wave theory. Now see, wave theory is basically theory covering three analysis. The first is the Elliott wave theory. As you know, this was basically formulated, developed by R.N. Elliott साहब. It was done in late 1920s and early 1930s. काफ़ी पुरानी थियरी है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी इज़ नाउ ओवर. तो इसमें मॉडिफिकेशन भी हुए होंगे, कुछ एडिशंस हुए हैं, कुछ ऑल्टरेशंस हुए हैं, एंड दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन न्यू वेव थियरी. ये कंटेम्प्रेरी है, इट हैज़ बीन डन बाय ग्लेन लीली. और उसके बाद तीसरी है हार्मोनिक एलियट वेव थियरी. ये सबसे नई आप कह लें. दिस इज़ बेसिकली वर्क ऑफ इयन कोप्सी. उन्होंने काफ़ी काम किया है इस पर. तो पहली दोनों थियरीज एक दूसरे से मिली जुली हैं. इनफैक्ट न्यू वेव हैज़ बीन डिराइव्ड आउट ऑफ Elliott wave theory, but harmonic Elliott wave theory is slightly different. Here in harmonic, basically we use ABC as the fractal. Whether it is an impulse, whether it is a corrective move, ABC is used as a building block. Whereas in Elliott wave theory and new wave theory, we have 1, 2, 3, 4, 5 and ABC fractals. Basically they are same. There have been some modifications, some additions in new wave, and when you read it, you'll get to know. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? वाई डू यू हैव टू लर्न Elliott wave theory if you are a trader or you are an investor? Why? The first thing, it takes into account psychological behavior of market participants. In fact, this is the only analysis that I know which takes into account. Just to explain it, see, the impulsive movements 1, 2, 3, 4, 5, they are basically a depiction of human behavior, trader behavior, their psychology. If you remember wave 1, it's a very hesitant move. थोड़ा सा लोग अनश्योर होते हैं. दे आर नॉट श्योर अबाउट द मार्केट मूवमेंट. बहुत फास्ट मूव नहीं होगा वेव 1 का. धीरे धीरे चलेगी, बिल्टअप होगी. बहुत से लोग आएंगे जाएंगे. मार्केट पार्टिसिपेंट इज़ ऑन अ रोटेशनल बेसिस. नो बडी इज़ देयर इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वेव 1. दे कीप बुकिंग प्रॉफिट्स. इसलिए थोड़ा सा हेजिडेंट रहती है वेव. थोड़ा सा उतनी स्मूथ नहीं चलती जितना वेव 3 चलती है. वेव 2 में प्रॉफिट बुकिंग होती है. जरा सा एक न्यूज़ आता है, जरा सा करेक्शन दिखता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है. और इसीलिए वेव 2 दे रिट्रेस टू अराउंड 61.8% लेवल्स. इफ़ यू रिमेंबर, वेव 4 डू नॉट रिट्रेस टू 61.8, बट वेव 2 डज रिट्रेस. इट इज़ सिंपली बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि वेव 1 इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर अ काउंटर ट्रेंड. अगर आप बियरिश मार्केट में हैं तो फर्स्ट वेव जो बुलिश मार्केट की बनेगी वो एक बियरिश ट्रेंड के बाद बनेगी. और अगर आप बुलिश फर्स्ट वेव में जा रहे हैं, बियरिश फर्स्ट वेव में जा रहे हैं, तो वो बुलिश के बाद बनेगी.
तो इट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट थिंग। और थोड़ा सा हेजिडेंसी होती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स में। Wave 3, once people are sure, once the traders are sure, once the market participants are sure, yes, the market is building up, then there is a lot of participants. बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, गैप्स मिलते हैं और सारे लोग उस रैली में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ वेव, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कन्विंस रहते हैं कि ट्रेंड इंटैक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है। इफ़ यू सी इट रिट्रेसेस टू 38.2 ऑड लेवल्स, नथिंग मोर। जिसे कहते हैं कि लोग सेल ऑफ करने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, ट्रेडर्स की थिंकिंग उसी ट्रेंड के साथ ही रहती है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेट करती है। इट इज़ नॉट लैगिंग द मार्केट, इट नेवर लैग्स द मार्केट। All technical indicators, whether they are RSI, Bollinger, MACD, whatever you call them, they are all lagging. They are only formed when the market has made its move. But in Elliott wave, you can forecast the move, you can predict the move. This is a big, big difference in Elliott wave analysis and other analysis. It can predict the behavior of market at higher highs and lower lows. See, this is a very big advantage of Elliott wave. I'll give you an example. If you are into an extended fifth wave, अगर आप fifth wave में है किसी impulse के और वो extend हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि as soon as it completes, it will retrace 61.8%. So no doubt market is going to make a new high, but after that high, it's going to retrace 61.8%. It is absolutely sure if you are an extended fifth wave. This kind of behavior cannot be predicted by any other analysis, but in Elliott wave, you can predict it. If you are into a terminal impulse, you will know that the entire impulse will be eradicated in very, very less time. तो ये चीज़ें बहुत अहम है एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर। ये आपको आगाह कर देती हैं कि ठीक है, हाई या लो तो आ रहा है, लेकिन अगर पैटर्न इस तरीके का है तो उसका रिएक्शन ऐसा होगा। इट कैन बी आइडेंटिफाइड, it can be used to identify market lows and highs. Okay, we have discussed it. It can predict not only the price action but also the way it unfolds, the nature of the waves. In Elliott wave, it's not the price action of the waves, it is the nature of the waves that is also important. If you are in wave 3, you should be sure you should be seeing gaps, it will be a fast wave. तो आप प्राइस एक्शन के साथ साथ किस तरीके से वो प्राइस एक्शन अचीव करेंगे वो भी आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं. It is almost an exclusive tool for long-term market analysis. This is a very advantage thing as far as Elliott waves are concerned. लॉन्ग टर्म एनालिसिस में, मंथली या उसके ऊपर के एनालिसिस में, अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस, दिस इज़ द ओनली एनालिसिस आई नो विच कैन टेल यू टू व्हेन टू एंटर इनटू अ स्टॉक एंड व्हेन टू एग्जिट अ स्टॉक. ये आपको बहुत अच्छे से बता सकती है कि अब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए इस स्टॉक में, इसकी रैली आने वाली है थर्ड वेव की, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं उस स्टॉक को तो. और किसी में इतनी आसानी से आपको किसी एनालिसिस में ये नहीं पता चलेगा. हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट टेक्निकल एनालिसिस, Elliott wave will give you a very clear insight when to enter a stock for a long term. आप अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स को जो वेव 2 ख़त्म कर रहे हैं या वेव 2 ख़त्म करके वेव 1 के ऊपर आ रहे हैं, हाई बना रहे हैं, तो फिर वो श्योर शॉट वेव 3 पे अगर जा रहे हैं तो यू कैन बी अ रिच मैन. तो ये बहुत बहुत ही अच्छा टूल है इस चीज़ को पता करने के लिए, टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ स्टॉक, दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स. इट प्रोग्रेसेस इन कंटिन्यूटी. ये आइसोलेशन में नहीं होती है. ऐसा नहीं है कि यू एनालाइज अ चार्ट टुडे एंड टुमारो यू हैव अ डिफरेंट एनालिसिस. यू कैन हैव अ डिफरेंट एनालिसिस, बट देन द एंटायर एनालिसिस, द प्रीवियस डे एनालिसिस विल आल्सो चेंज. आज कोई एनालिसिस करके उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं और कल पूरी नई एनालिसिस, एक फ्रेश एनालिसिस कर नहीं सकते हैं इसमें. द पास्ट इज लिंक्ड टू द प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट इज लिंक्ड टू द फ्यूचर. Everything is interlinked in Elliott wave analysis. It progresses from blocks to blocks, in which previous, present, and future, all things are taken into account. Even wrong analysis in early stages would not give negative result. This is a very beautiful irony of this analysis. जब भी कोई वेव शुरू होती है, whenever there is a wave starting, you can count it as 1, 2, 3 or A, B, C. Till it is a 3-move structure, no problems. Both will go the same way. सी, आप बहुत से यूट्यूब चैनल देखते होंगे, बहुत सी चीज़ों को पढ़ते होंगे, बहुत से ब्लॉग्स को पढ़ते होंगे. एवरीबडी हैज़ हिज ओन एनालिसिस. द सेम मूव इज़ बीन मार्क्ड एज 1, 2, 3 बाय वन, A, B, C by the other, something else by the other. But
Many of them will be collectively right or wrong, simply because it gives you that scope. During the early stages of wave formation, an ABC can be counted as a 1, 2, 3, but eventually you have to correct it. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गलत चीज़ है, ये आप निष्कर्ष निकालिए, लेकिन ये गलती करने का भी स्कोप आपको देती है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल देती है, उसको आप आगे जाके सही कर लें। इट कवर्स ऑल टेक्निकल पैटर्न्स एंड गिव्स प्रिसाइज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। What do I mean to say by this? See, in technical analysis, traditional, there are many chart patterns. Head and shoulders, one of them very famous. बहुत traders use करते हैं. Flag, pennants, wedges. ये सब Elliott wave analysis के patterns का part है. If you see, head and shoulders जो सबसे famous है, basically it is nothing but an extracting triangle or a neutral triangle. Another structure it resembles is a terminal impulse, which has a third wave extension and a fifth wave failure. Draw this and see it. It is nothing but a head and shoulder. What is a flag? It is simply a flat. Pennants हमारे triangles को resemble करते हैं. They are triangles basically. Rising wedges, falling wedges, they are nothing but terminal impulses. तो ये सारी चीज़ों को कवर करता है. बस एक चीज़ और इसमें ये एडवांटेज जो इसकी है, इट गिव्स यू द प्रिसाइज एंट्री एंड द एग्जिस्ट पॉइंट. इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू अ ट्रायंगल, you know the targets. If it is a limiting, non-limiting triangle, you know the targets where it's going to hit. Book there. If it's a flat, you know what is the target, depending upon the flat structure. If it's a C wave failure, you know 161%, 1.618 times, that is the target. If it's a normal flat, anything around 100%. So it gives you an idea what is going to happen after that pattern is complete. Plus, it will make you aware whether that pattern is going to form or not. Pattern के failures को you can very easily identify with Elliott waves, which is not there in technical traditional analysis. See, this is not a debate about which is better, which is bad, which is good or which is not good. It's simply what is advantages as far as the Elliott waves are concerned, and if it is there, we have to discuss it. ऐसा नहीं है कि everything is rosy here. There are many disadvantages. I have listed a few of them. First, there is very little limited authentic material available for learning. This is a very big disadvantage. I have said it many times. This is a very unorganized sector of learning actually. तो जब भी कोई सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड होता है तो सीधी सी बात है, बहुत चीज़ें सिस्टम में नहीं रहती हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ऑथेंटिक रीडिंग मटेरियल है, जिसको आप बुक्स कहें, वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है. बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास जहाँ से आप सीख सकते हैं. सेकेंड, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो सॉफ्टवेयर असिस्टेंस इन दिस. You cannot use any software to analyze a chart. You have to do it all by yourself. Only human intelligence is there to help you out, nothing else. सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा. कोई सॉफ्टवेयर आपके लिए ABC और 1 2 3 4 5 बना के नहीं दे सकता है. तो एक रॉ चार्ट ही है जो सॉफ्टवेयर से आपको मिलता है, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद करनी है. दिस इज़ अ बिग डिसएडवांटेज इन दिस. Then there can be many pattern possibilities in early stages of wave formation which may be confusing. हम लोग कई बार Elliott wave analysis जब डिस्कस करते हैं निफ्टी का टाइम टू टाइम, तो उसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र होता है. वो हमेशा क्यों होता है? उसका सिंपल सा कारण है, इनिशियल वेव फॉर्मेशन में बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. वेन एवर यू सी अ 3 वेव स्ट्रक्चर, इट कैन बी a ABC, it can be a 1 2 3 4 5. If it is a ABC developing, then it can be a flat, it can be a zigzag, it can be a triangle, it can be anything. तो इनिशियल स्टेजेस में बहुत सी प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं जो रिड्यूस होती जाती हैं जैसे जैसे हम आगे जाते हैं. इट इज़ सिंपली, अगर आप देखें तो इट इज़ लाइक सेलेक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस. आपको उन्हीं में से ढूंढना है, उन पैटर्न्स में से कौन सा ज़्यादा प्रॉबेबल है, कौन सा ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखता है अनफोल्ड होने के लिए. बट यू शुड कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज़. ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, ये लोगों को कई बार दिक्कत करता है. सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज, नो डाउट अबाउट इट. और इसके लिए तो as simple as that, since everything has to be done by you, nothing that can be assisted by computers, by software, so it will take more time, it will take a lot more effort. Almost negligible tolerance for error in final stages of wave formation. इनिशियल स्टेजेस में बिल्कुल आप गलती कर सकते हैं, मौका रहता है, गलत कीजिए फिर सही हो जाइए. लेकिन फाइनल स्टेजेस में अगर आपने गलती कर दी तो सही करने का मौका मार्केट नहीं देता है. ये एक डिसएडवांटेज है. Remember Nifty falling from 12,430 to 75
2, अगर आपने वहाँ गलती कर दी थी तो फिर कोई मौका नहीं था आपके पास निकलने का। इनिशियल स्टेजेस में अगर आपने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही होने का मौका मिलेगा, बट यू शुड बी वेरी वेरी अलर्ट व्हेन यू आर द लास्ट स्टेजेस ऑफ पैटर्न. If you identify it wrong there, then you are into trouble. It requires a lot of patience. ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से. बहुत लोगों को तो चलिए ये न्यूट्रलिटी लगेगी, बट इट इज़ नॉट अ इंस्टेंट रेसिपी. पैटर्न्स मैं हमेशा आपके साथ कहता हूँ, दे टेक डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इवन ईयर्स टू डेवलप. हमारे आपके रश कर देने से कोई चीज़ नहीं डेवलप होगी. इट विल टेक इट्स ओन टाइम. इसलिए पेशेंस इसमें बहुत ज़रूरी है. इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. इट्स नॉट अ 2 मिनट रेसिपी. आइए, नाउ द प्रोसेस, हाउ टू स्टार्ट द लर्निंग. तो मैंने ये आपको कुछ, दीज आर माई सजेशंस. इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, देन इलियट वेव थ्योरी से शुरू कीजिए. और इसमें जो हमारे लिटरेचर अवेलेबल हैं, फ्रॉस्ट एंड प्रेशर के हैं, आर एन इलियट्स आपके भी हैं, यहाँ से शुरुआत कीजिए. This will cover the basic fundamentals of Elliott wave theory. Once you are aware of them, once you are acquainted with them, आप मार्किंग शुरू कर दें. इसके बाद जब आप ए बी सी और 1 2 3 4 5 को आइडेंटिफाई करने लगें, उनको मार्क करने लगें, थोड़ा कंफर्ट लेवल आपका हाई हो जाए, तब आप न्यू वेव थ्योरी पे जाएं. और न्यू वेव थ्योरी के लिए ग्लेन लिली साहब का लिटरेचर है. इसके अलावा कुछ नहीं है. इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. बेसिकली न्यू वेव थ्योरी थोड़ा सा एडवांस्ड है इलियट वेव का. इलियट वेव में कम रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, रूल्स बहुत कम हैं, रिजिडिटी बहुत कम है. इन न्यू वेव देर आर लॉट ऑफ रूल्स. एवरी पैटर्न हैज सर्टन रूल्स टू गवर्न इट. It is a rigid analysis. It's not flexible. You do not have the flexibility to give any scope to a pattern to err in its dimensions, in its formation. और थोड़ा सा डिटेल्ड है. It's not very difficult. You will find it very easy once you are acquainted with the basics of Elliott wave theory, but that is a must. So start with basic Elliott wave theory, and when you are comfortable with it, when you have already recognized how to recognize a pattern or how to mark your ABCs and 1 2 3 4 5s, then you move on to new wave theory, because it will require certain degree of proficiency, certain degree of knowledge to have a very smooth reading, very smooth अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू वेव. तो ये ज़रूरी है. रही बात हार्मोनिक इलियट वेव थ्योरी की, तो ये आपके ऊपर है. अगर आपको टाइम है, आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, वरना जो प्रोमिनेंस में है, जो फॉलोड है वर्ल्ड वाइड, वो ऊपर की 2 थियरीज़ हैं. दिस इज़ येट टू गेन प्रोमिनेंस. अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में ये नहीं है. आफ्टर दिस, इफ़ यू स्टिल वांट टू लर्न, तो गूगल देवता से अच्छी कोई चीज़ नहीं है. Everything is available on Google. Go on the web, search whatever patterns you feel like, whatever formations you want to study. Everything is available in Google. You can do that. Just a word of caution. Everything that is available in Google, in website, because there are hundreds and thousands of them, they are not good. They are not authentic. बहुत बार आपको रियलाइज़ होगा कि the same thing has been repeated in different web pages, just a little modification here and there, and people have launched another site with some other name. So if a mistake is committed in one particular presentation, it will be carried over to the other one. तो बहुत ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है. हर साइट पे नहीं मिलेगा आपको. ऐसा नहीं है कि सभी खराब है. नो, यू विल फाइंड वेरी गुड मटेरियल इन सम साइट्स, बट नॉट ऑल साइट्स आर गुड. एंड इट्स माई एक्सपीरियंस दैट साइट्स डीलिंग विद फॉरेक्स, दे यूजुअली हैव गुड मटेरियल. तो सर्च कीजिए. थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो मतलब पूरे बाज़ार में एक बहुत बड़ी मंडी है, जैसे बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें से एक अच्छी चीज़ ढूंढनी है आपको, तो थोड़ा सा एफर्ट तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा. सो डू दैट एफर्ट, सर्च फॉर देम, एंड देन you can always take the feedback. So use these books to start with. Start with the Frost and Pressure and Eliot literature. When you are comfortable with them, go to Glenn Lilly if you want to, and of course use Google's help. Now the question, charts, कौन से charts use करने हैं and what time frames to study. There are basically 2 prominent charts that are used. One is the bar and one is the candlestick chart. ये ट्रेडिशनल इलियट वेव की मैं बात कर रहा हूँ. जैसे ही आप न्यू वेव में आते हैं, तो ग्लेन लिली साहब का कहना है, ही सिंपली सेज
Bar and candlestick chart, they are no good. You have to use new wave charts. Now I'll tell you what is the difference between the two. See, this is a simple candlestick chart. If you want, you can convert it to a bar chart. This is investing.com. You can use tradingview.com, whatever you feel like, but these are readily available charts in many platforms. So no problems about this. Well, as far as the new wave charts are concerned, they look like this. This is a 75-minute new wave chart starting from the low of, I think, 10792 and to the high of 12025. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये चार्ट ऑटोमेटेड नहीं होते हैं. देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म विच इज़ प्रोवाइडिंग एन ऑटोमेटेड चार्ट ऑफ न्यू वेव. नो, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इट. बेसिकली इसमें होता क्या है कि जिस टाइम फ्रेम का, जिस टाइम इंटरवल का हम चार्ट बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ आवरली चार्ट, न्यू वेव चार्ट, देन यू हैव टू टेक द हाई एंड लो ऑफ एवरी आवर एंड प्लॉट इट. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द क्लोजिंग प्राइस. प्लीज़ रिमेंबर, इसमें क्लोज का कोई मतलब नहीं है, ना ओपन का कोई मतलब है. सिंपली हाई एंड लो. अगर आपको आवरली चार्ट बनाना है, इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट एन आवरली चार्ट, न्यू वेव चार्ट ऑफ निफ्टी, देन यू हैव टू टेक द हाई एंड लो ऑफ एवरी आवर ऑफ निफ्टी एंड प्लॉट इट. एज सिंपल एज दैट. इट लुक्स लाइक अ लाइन चार्ट, बट इट्स नॉट अ लाइन चार्ट, बिकॉज जो यहाँ पे लाइन चार्ट मिलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ, लाइन चार्ट आपको दिखेगा, बट दिस लाइन चार्ट इज़ बेस्ड ऑन क्लोजिंग बेसिस, क्लोज प्राइस. इट्स नॉट न्यू वेव चार्ट्स. यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है न्यू वेव का, तो ये है नहीं. दिस इज़ अ ड्रॉबैक. और ये बहुत कभी कभी बड़ा टीडियस जॉब हो जाता है बनाना इसको. तो अगर आप में से कोई आईटी एक्सपर्ट है, तो मेरा तो बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छा बिजनेस सजेशन है आपके लिए कि जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस. कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए वे यू गेट ऑटोमेटेड निफ्टी, बैंक निफ्टी, न्यू वेव चार्ट्स. इट कुड बी अ गुड रेवेन्यू सोर्स फॉर आईटी एक्सपर्ट्स. लेकिन ये है नहीं अभी, और ये सब कुछ मैनुअल करना पड़ता है. कौन से टाइम फ्रेम्स की यूज़ करते हैं? तो देखिए, दोनों की अहमियत है. लार्जर टाइम फ्रेम्स, दैट मीन्स मंथली, वीकली एंड अबव दैट, दे आर द बेस. ये फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, इन्हीं पे आप बिल्ड करते रहते हैं. लेकिन आप इनको सीधे सीधे बना नहीं सकते. यू जस्ट कैनॉट ओपन अ स्क्रिप्ट एंड सी अ मंथली चार्ट एंड एनालाइज इट. इट विल, यू माइट बी करेक्ट सम टाइम, बट मोस्ट ऑफन देन नॉट यू विल बी रॉन्ग. उसका कारण मैं आपको बताता हूँ. सी, दिस इज निफ्टी. नाउ आई कन्वर्टेड टू अ मंथली चार्ट. What do you see in this? Nothing. This is a green candle. You can mark it as 1, you can mark it as A. Until and unless you know what has gone on internally in this candle, you will never be confident whether this is an impulsive move or whether this is a corrective move. So yes, this is a building block. This is the base, but the building blocks are the smaller time frame charts. You have to analyze your smaller time frame charts, hourly charts, daily charts or 15 minutes chart. जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे, आप कॉन्फिडेंटली मंथली चार्ट्स पे कोई मार्किंग नहीं कर सकते हैं. अगर आप करते हैं तो हो सकता है आप सही हों, लेकिन बहुत बार आप गलत होंगे, क्योंकि आपको उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स का ही नहीं पता होगा. यू विल नॉट बी नोइंग व्हाट हैज़ गॉन ऑन inside those candles, whether it was a correction or whether it was an impulse. So yes, your base is the monthly, you have to build on that, or the weekly, or whatever time frame, larger time frame you choose. But the smaller time frame charts are very helpful. They should be analyzed daily, on a daily basis, so that you can build up on those, on that basic chart. 15 मिनट से कम के चार्ट आई डोंट थिंक पीपल शुड बी यूजिंग. वो बहुत ज़्यादा नॉइजी हो जाते हैं, तो 15 मिनट तक ही रिस्ट्रिक्ट कीजिए अपने आप को. और डेली एनालिसिस आपके लिए ज़रूरी है अगर आप किसी स्क्रिप्ट को एनालाइज करना चाहते हैं. नाउ कम्स द प्रैक्टिस. हाउ टू स्टार्ट योर एनालिसिस शुड ऑलवेज बी स्टार्टिंग विद अ प्रोमिनेंट लो और अ हाई. आप जहाँ से भी शुरू करना चाहते हैं, उसके किसी भी पॉइंट के प्रोमिनेंट लो या हाई से आपको शुरू करना पड़ेगा. दैट इज़ द प्लेस दैट यू स्टार्ट. फॉर एग्जाम्पल, if you want to analyze this chart, you have to start it from here. Even though after advanced analysis has been done by you, the low is shifted to here, that is not a problem. But to start with, you will have to start from here. If you start your analysis here from the high, then this is the point that you should be starting your analysis, the prominent high. So this is how you should be starting your analysis. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ट्राई टू लुक ऑन अ ब्लैंक चार्ट. बिना किसी मार्किंग के देखिए. और सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है, वो इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव्स को आइडेंटिफाई करना सीखना है. वेन एवर यू सी अ मूव, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट, वेदर दिस इज़ अ करेक्टिव मूव और वेदर दिस इज़ एन इम्पल्सिव मूव. दिस इज़
a very important thing. This will save a lot of time and effort for you. So this should be your priority. You should be able to identify the nature. The nature of the move is very important. उसकी intricacies क्या हैं? What are the details? Where is one? Where is two? Where is three? Where is A? Where is B? That is a different thing. But the best and the only most important thing is to identify where there is a corrective move or whether it is a impulsive move. Do not rush to mark waves. As soon as you see a chart, don't start counting it as 1, 2, 3, 4, 5 or A, B, C. First, identify whether this is a corrective move or whether it was an impulsive move. Then try to break it up into fractals. Make sure all rules are followed. There are some basic rules in Elliott waves, like second and fourth should not intervene with each other. One of the waves should be extended. Second and fourth wave should alternate. So there are some simple rules and they should be followed. You should follow those rules. Your counts should follow those rules. See, I'm discussing this only for basic Elliott wave theory. I'm not discussing it for neo wave theory. Once you are done with basic Elliott wave, then only we can discuss about neo wave. तो इसको आप फॉलो कीजिए सारे रूल्स को. ये गांधी जी की बंदरों की क्वालिटीज़ हैं. वेन एवर यू आर डूइंग योर एनालिसिस यू शुड बी डेफ, ब्लाइंड एंड डम टू एक्सटर्नल नॉइज़. ऐसा नहीं है बॉस कि आप एनालिसिस करने बैठें और एक तरफ आपने एक्सजीएक्स निफ्टी लगा रखा है, एक तरफ आपने डाउ फ्यूचर्स लगा रखा है. 500 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स तो आपकी बुलिश काउंट होने लगी. यू आर स्टार्ट काउंटिंग योर काउंट्स इन अ बुलिश मोड एंड द मोमेंट यू सी योर डाउ फ्यूचर्स गोइंग डाउन 100 पॉइंट्स यू कन्वर्ट इट इनटू अ बियरिश काउंट. नो सर, इट वोंट हेल्प. और आप अगर बहुत ज़्यादा लोगों के एनालिसिस देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो फिर आप बायस हो जाएंगे. तो वेन एवर यू डू योर एनालिसिस यू शुड बी डेफ, ब्लाइंड एंड डम. वंस यू डू योर एनालिसिस, ठीक है, सबसे डिस्कस कीजिए, लेकिन उसके पहले किसी की मत सुनिए, सिर्फ चार्ट की सुनिए. चार्ट को देखिए और चार्ट की सुनिए. लिसन एंड सी what the chart offers you. Everything else is useless. Price action is important, but the way the price action is achieved is very important. Never ignore it. थर्ड वेव अगर आपको लग रही है कि चलने वाली है तो नेचुरली प्राइस 1.618 टाइम्स जाएगी वेव वन के, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से जाएगी. हाउ इट विल एडवांस. इट विल एडवांस विद गैप्स. इट विल बी अ फास्ट एंड फ्यूरियस मूव. Your counts, if they are 1, 2, 3, they should be supported by this kind of market action. It is not as simple as that कि प्राइस ने 1.618% 1.61 टाइम्स पहुंच गई लेकिन गैप्स नहीं हुए, बहुत ही क्रिस्पी मूव नहीं रही, एक इंटरवीनिंग मिंगलिंग टाइप ऑफ अ मूव है, स्लो है, घिसती पिटती मूव है, लॉट ऑफ इंटरवीनिंग वेव्स, एक दूसरे से ओवरलैप करती हुई वेव्स. तो साहब उस प्राइस मूवमेंट को आप वेव 3 नहीं कह सकते हैं. ठीक है, आपका टारगेट मिल गया, 1.61 पहुंच गई वेव, but it will not be an impulsive move. The nature of the advance or the decline is equally important as far as the price action is concerned, if not less. किस तरीके से मार्केट चलता है वो बहुत ज़रूरी है, कितना चलता है वो तो है ही ज़रूरी. Always be ready to recount or modify counts once the initial counts are negated. Don't be rigid. If market is not following your counts, don't try to adjust it to yourself. Don't try to adjust the market to your counts. Adjust your counts with the market. आप modify कीजिए, adjust कीजिए. Do not try to analyze a chart which contain too many waves. छोटा सा example है. If you want to analyze a 6 months movement of market, don't do it on 15-minute time frame. It will simply be confusing. You will never be able to analyze it. आपको टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम के चार्ट को सेलेक्ट करना है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे दायरे के लिए उसको एनालाइज करना चाहते हैं. इफ़ यू वांट टू एनालाइज समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year, यू कैनॉट यूज़ एन आवरली चार्ट. यू हैव टू यूज़ अ मंथली चार्ट मिनिमम और अ डेली चार्ट. Please understand it. Too many waves on your chart will simply create complexities and you will not be able to arrive into any conclusion. Have an unbiased analysis. This is a very important thing. See, if you are long, अगर आज आपने दिन में कोई लॉन्ग पोजीशंस बना ली हैं, शाम को आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो बुलिश काउंट्स को फिट मत करने की कोशिश कीजिए. Similarly, if you have short in the market in the morning, don't try to fit in the bearish counts in the evening. एकदम न्यूट्रल रहिए.
अगर आपके पास बहुत हैवी पोजीशंस हैं किसी एक साइड की, बिलीव मी यू विल नेवर बी एबल टू डू एन अनबायस्ड एनालिसिस। ये ह्यूमन नेचर है साहब। हम कुछ ना कुछ करके जाने अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली, वी विल ट्राई टू फिट इन द काउंट्स दैट सूट्स आर ट्रेड। तो अगर आप न्यूट्रल हैं, वो सबसे अच्छी एनालिसिस होती है, लेकिन कोशिश कीजिए न्यूट्रल हो ना हो, एनालिसिस आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए। बी रेडी टू बी फ्रीक्वेंटली रॉन्ग एंड हैविंग अ फीलिंग ऑफ गेटिंग नोवेयर। ये साहब बहुत गंदी फीलिंग होती है जब आप शुरू करेंगे इलेट वेव एनालिसिस। आपकी काउंट्स आपको लगेगा कुछ नहीं है, सब गलत सलत हो रही हैं, 1 2 3 4 5 बनाता हूँ तो ABC बन जाती है कल। ये होगा, you should be ready for this will happen, it's nothing new, it has happened to almost every Elliott wave analysis, whether it is me, you or anybody। ये होगा, होता रहेगा, लेकिन इसके साथ आपको जीना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा और परसिस्ट करना पड़ेगा, करते रहने, तभी आप फिर किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचेंगे। डिस्कस एंड शेयर वंस योर एनालिसिस इज डन। जब तक एनालिसिस करें कुछ मत देखिए, ना एक्सजीएक्स देखिए, ना डाउ देखिए, ना फ्यूचर्स देखिए, ना पास देखिए, ना किसी की सुनिए, ना किसी से डिस्कस कीजिए। लेकिन जब हो जाए आपकी एनालिसिस तो ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों के साथ डिस्कस कीजिए। आपको पता चलेगा क्या लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलर जो इलियट वेव एनालिसिस कर रहे हैं, कहाँ डिफरेंस है आपकी उनकी अकाउंट्स में, क्या आप गलत हैं या वो सही हैं, या क्या बेहतर और कर सकते हैं। इनफैक्ट एक छोट आपको, जो लोग इलियट वेव्स एनालिसिस, पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग इट, हु आर एसोसिएटेड विद मी इन दिस चैनल, दे अंडरस्टैंड ये एक बहुत बड़ा वेकेंट एरिया है इलियट वेव्स का। देयर हैज़ टू बी अ गुड ब्लॉग समवेयर where people can share their ideas, discuss about it। हाँ, ट्रेडिंग व्यू है, वहाँ लोग चार्ट्स डालते हैं, लेकिन वहाँ उस तरह का इंटरेक्शन नहीं होता। देयर इज़ नो इंटरेक्शन देयर जिससे लोगों को एक दूसरे के साथ शेयर करके और इंटरेक्ट करने का मौका मिले। सब अपने अपने चार्ट्स डाल देते हैं, क्यों डालते हैं, क्या रीज़न है, वो सब रिस्ट्रिक्टेड रहता है और बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं होते। तो एक ब्लॉग सा होना चाहिए जिसमें सब कोई डालें, सब कोई का मतलब जो थोड़ा सा इसमें जानकार हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो डस्टबिन बन जाए वो ब्लॉग, और उस पर डिस्कशंस हो। क्योंकि दूसरों के अकाउंट्स को देख के ये ज़रूर पता आपको चल जाएगा कि आपने कहाँ गलत किया, और अगर अगले ने गलती की है तो भी आपको पता चल जाएगा, आप उसके साथ बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, और फिर एक बेहतर नतीजे पे कलेक्टिवली आप पहुँच सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर both for you and for the other ones, to correct, to learn and have a better count। Have patience, resist and persist। पेशेंस रखिए, पैटर्न्स को डेवलप होने दीजिए, इंतज़ार कीजिए उनको डेवलप होने का, उनको कंप्लीट होने का, रश मत कीजिए उनको कंप्लीट करने के लिए, और रेजिस्ट कीजिए उस फीलिंग को जो ऊपर आएगी आपके पास कभी बहुत बार, दैट फीलिंग ऑफ गेटिंग नोवेयर, यू शुड रेजिस्ट दैट। ऐसा नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन में यू गिव अप कि भाई ये तो बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, सो जस्ट लीव इट। नो, ऐसा नहीं है। परसिस्ट कीजिए अपनी चार्ट्स के साथ, अपनी एनालिसिस के साथ, उनको बेहतर कीजिए, मेक इट अ बेटर थिंग। थोड़ा सा और बेटरमेंट कीजिए, ये समझिए कि कुछ चीज़ कमी है इसीलिए सही नहीं हो पा रहा है, और इवेंचुअली यू विल अराइव एट द राइट काउंट्स। यूज़ टेक्निकल indicators to support your accounts। This is a very important thing। See, there are many technical indicators, but some prominent ones are Bollinger Bands, MACD, RSI। You use these indicators to support your counts। Let me tell you, for example, if you are counting an impulsive move 1 2 3 4 5, then all momentum indicators should diverge when the fifth wave is in the formation। That means पांचवी वेव जब चलेगी तो मार्केट विल बी मेकिंग अ न्यू हाई, बट RSI विल नॉट मेक अ न्यू हाई, इट विल डाइवर्ज, इट विल मेक अ लो, इट विल नॉट मेक अ न्यू हाई। बॉलिंजर में मार्केट का हाई भले ही एब्सोल्यूट टर्म्स में नया हाई हो, लेकिन बैंड्स के अंदर आएगा, बैंड्स के ऊपर नहीं जाएगा फिफ्थ वेव में। इट विल नॉट क्रॉस अबव द बैंड, इट विल नॉट वॉक द बैंड, इट विल मूव इनसाइड द बैंड। मैकडी कन्वर्ज डाइवर्ज करेगा जब वेव फिफ्थ में आप होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसेंशियल है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है आपके अकाउंट्स में। अगर मैकडी बहुत ज़्यादा जिगजैग कर रहा है, दोनों लाइंस आपस में बहुत फ्रीक्वेंटली क्रिस क्रॉस कर रही हैं, देन यू आर इनटू अ ट्रायंगल। आपको एक पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए कि आप ट्रायंगल बना रहे हैं पैटर्न में, कहीं ना कहीं इलियट वेव में अगर ऐसा हो रहा है तो ये सपोर्ट है। टेक्निकल indicators are support as far as your analysis is concerned। You should use them to cross check, to verify
कि हाँ ठीक है, मेरी काउंट सही है। अगर पांचवी वेव चल रही है तो आरएसआई डाइवर्स कर रही है, आरएसआई हाई नहीं बनानी, भले ही मार्केट हाई बना रहा है। तो इसको यूज़ कीजिए और ये आपको बेहतर काउंट करने में बहुत मददगार सिद्ध होगी। दिस विल हेल्प यू इन अ बेटर काउंट। Always remember, market is supreme, it can never go wrong, but we can always be wrong. अब हम हमेशा गलत हो सकते हैं, ये सोच के एनालिसिस कीजिए, मार्केट नहीं गलत होता है। वेव थियरी दिस इज नथिंग बट अ पजल, जिसमें 1 2 3 4 5 और ABC फ्रैक्टल्स हम यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत से पजल्स बच्चे बनाते रहते हैं घरों में, छोटे छोटे बच्चों के आते हैं आजकल, वही है ये। पूरे वेव में इस पजल को, पूरे मार्केट मूवमेंट में इस पजल को आपको फिट कर देना है और फिर एक पैटर्न डेवलप होगा। और अगर आप इंजॉय करते हैं तभी कीजिए, वरना फिर ये मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी उन लोगों के लिए, ख़ासतौर के ये वीडियो मैंने कोशिश की बनाने के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं सीखने की। स्टार्ट लर्निंग, इट्स नेवर टू लेट। और अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोथ फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड फॉर अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। बेसिकली दिस इज़ एन एंडलेस टॉपिक, इसमें कई घंटों के वीडियो बन सकते हैं। तो इतना तो ना आपके पास टाइम होगा सुनने का, ना मेरे पास कि मैं आपको बताऊं। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, फ्रॉम वेयर टू लर्न एंड हाउ टू लर्न एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड बी हैविंग इन योर माइंड बाई डूइंग योर एनालिसिस, आई हैव ट्राइड टू डिस्कस विथ यू। कुछ चीज़ें रह गई हो गई होंगी। इफ़ समथिंग हैज़ बीन लेफ्ट आउट, आई विल ट्राई टू कवर इन सम अदर टाइम, सम अदर वीडियो, बट दिस इज़ ऑल दैट आई हैव फॉर यू फॉर नाउ। तो चलिए इन्जॉय कीजिए इसको, और अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो ही शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करना भूल जाता हूँ और फिर आप लोग भी नहीं करते। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।